بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایجی چینل۔ ہم تجھ کو بھلا کر خود کو سزا دیں گے۔ شہر کی رونقوں میں گھرا ہوا ایک مصروف بازار تھا جہاں ہر طرف لوگوں کی ہلچل، گاڑیوں کی آوازیں اور لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی کے مصائب میں مصروف نظر آتے تھے۔ اسی بھیڑ میں ایک لڑکی جس کا نام سرمینا تھا ہاتھ میں فوڈ پانڈا کا چھوٹا سا کیمپ لے کر کھڑی تھی۔ مینا کی عمر تقریباً 20 سال تھی، لیکن زندگی کی مشکلات نے اس کے چہرے پر ایک تھکن اور پختگی کی جھلک چھوڑ دی تھی۔ وہ چھوٹے سے محلے کی رہائشی تھی جہاں غربت اور پریشانی روز کا معمول تھا۔ سرمینا کے والد گردوں کے مریض تھے اور والدہ لوگوں کے گھروں کا کام کرتی تھی، اس لیے زرمینا کو پڑھائی چھوڑ کر گھر کی ذمہ داری اٹھانی پڑی۔ زرمینا نے ہمیشہ خود کو چھوڑ کر دوسروں کی خوشی کے بارے میں سوچا۔ زرمینا کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک تھی، مگر زندگی کے تلخ حقائق نے اس کی ہنسی چھین لی تھی۔ وہ ہر روز صبح سویرے نکلتی، کیمپ لگا کر فوڈ پانڈا کی ترسیل کرتی اور واپس گھر آ کر تھکی ہاری اپنی چھوٹی بہنوں کی دیکھ بھال کرتی۔ زرمینا کے لباس پر محنت کی مٹی اور ہاتھوں پر کام کے نشان واضح تھے، مگر اس کی روح میں ایک خواب تھا، خود مختار بننے کا، اپنے خاندان کی بہتر زندگی کا، اور اس کو یقین کے ساتھ کہ محنت کرتی تھی کہ یہ ایک نہ ایک دن وہ اپنی منزل مقصود پر ضرور پہنچے گی اور اسے اپنی منزل ضرور ملے گی۔ اسی دوران شہر کے دوسری طرف ایک نوجوان لڑکا عمر اپنے قیمتی لباس میں کسی اہم میٹنگ سے واپس آ رہا تھا۔ عمر ایک مشہور اور امیر خاندان کا وارث تھا جس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، شہرت اور خواہشات کی کوئی کمی نہ تھی۔ عمر کے والد ایک بڑے کاروباری ادارے کے مالک تھے اور عمر بھی اپنے والد کی کمپنی میں کام کرتا تھا، مگر عمر کی زندگی میں ایک خلا تھا، ایک کمی جو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن جب عمر ایک کپ کافی لینے کے لیے کیفے کے باہر نکلا تو اس کی نظر اچانک سرمینا پر پڑی۔ سرمینا کا فوڈ پانڈا کیمپ اس کیفے کے سامنے تھا۔ وہ بڑی محنت سے اپنے گاہکوں کی خدمت کر رہی تھی۔ عمر نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کی ہر گھڑی جیتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ عمر نے دل میں سوچا کہ اسے اس لڑکی سے بات کرنی چاہیے، اس کی کہانی جاننی چاہیے۔ وہ کیمپ کے قریب گیا اور مسکرا کر زرمینا سے کہا، کیا میں آپ کا فوڈ پانڈا لے سکتا ہوں؟ زرمینا نے تھکاوٹ کے باوجود مسکرا کر جواب دیا، جی بالکل، آپ کو کیا چاہیے؟ وہ دونوں کی پہلی ملاقات تھی، لیکن عمر کے دل میں کچھ خاص جذبہ جاگا تھا۔ اس نے فوڈ پانڈا کا آرڈر دیا اور زرمینا سے بات چیت شروع کی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی زندگی میں کیا مشکلات ہیں، اس کے خواب کیا ہیں اور اس کی دنیا کیسے دکھتی ہے۔ زرمینا نے عمر کو بڑی دکھ بھری لہجے میں کہا کہ ہم غریبوں کی کوئی کہانی نہیں ہوتی اور کوئی خواب نہیں ہوتے، بس 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ مل جائے، اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ پھر زرمینا نے اپنی کہانی سنائی کہ کیسے اس نے پڑھائی چھوڑی، کیسے وہ روزانہ محنت کرتی ہے اور کیسے وہ چاہتی ہے کہ اس کی چھوٹی بہن نے تعلیم حاصل کرے تاکہ وہ ایک دن اپنی زندگی خود بنا سکیں۔ عمر کا کھانا کھاتے وقت اچانک نوالا زمین پر گرا تو زرمینا نے جھٹ سے اسے ہاتھ میں اٹھایا اور چوم کر پلیٹ میں رکھ دیا اور بسم اللہ بولا۔ عمر نے سوچا کہ ہم دن میں کئی بار اسی طرح کھانا بنا کھائے ویسٹ کر دیتے ہیں، کبھی آدھی چائے پی اور آدھی چھوڑ دی، اور ان لوگوں کو کتنی قدر ہے رزق کی۔ عمر کی آنکھوں میں اس وقت حیرت اور احترام کے آنسو تھے۔ وہ اس لڑکی کے حوصلے اور ہمت کا دیوانہ ہو گیا۔ وقت کے ساتھ عمر اور زرمینا کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ زرمینا جہاں جہاں اپنا کیمپ لگاتی، عمر ہر روز زرمینا کے پاس وہیں چلا آتا، اس سے باتیں کرتا اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لاتا۔ کبھی واپسی پر اپنی گاڑی میں کھواتا اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا، اور کبھی زرمینا آنے سے انکار کر دیتی تو گھنٹوں اس کے کیمپ کا ختم ہونے کا گاڑی میں انتظار کرتا۔ زرمینا بھی عمر کے ساتھ وقت گزارنے میں خوشی محسوس کرنے لگی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ کہیں یہ سب خواب ہی نہ رہ جائے، کیونکہ محلے والوں کی باتیں اس کے سینے کو چیر کر گزرتی تھیں۔ جب لوگ کہتے تھے کہ فوڈ پانڈا کے بہانے یہ کچھ اور محنت کر کے آتی ہے، ایسے ہی تو ان کے حالات نہیں بدل رہے، کچھ تو لین دین کا معاملہ ہوگا۔ وہ جب یہ گلی سے گزرتی اس پر تانے کستے اور کہکھے لگاتے،
एक दिन उमर ने जरमीना को अपनी गाड़ी में बिठाया और शहर की बहुत बड़ी पार्टी में ले गया। वहां जरमीना ने उमर का लाइफस्टाइल देखा और बहुत मुतासर हुई। टेबलों पर हजारों किस्म की डिशेस रखी हुई थी और हजार किस्म की सॉफ्ट ड्रिंक्स भी थी। वहां इन्होंने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें की। वहां बैठकर दोनों ने अपने ख्वाबों और जिंदगी की हकीकतों पर हजारों तबसरे किए। उमर ने कहा, जरमीना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल है, मगर मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जरमीना की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि उमर की बातें दिल से हैं, मगर वो अपनी हकीकतों को भी छुपाना नहीं चाहती थी। इसने कहा, उमर, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरी जिंदगी तुम्हारी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। क्या तुम वाकई मेरे साथ इस जिंदगी को कबूल कर सकोगे? उमर ने हाथ थामकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ, बस तुम मेरे साथ रहो। इतने में एक शख्स इनके करीब आया और उमर से हाथ मिलाया और बोला, ये तो वही जरमीना नहीं है, फूड पांडा वाली। जरमीना ने कुछ शर्मिंदगी महसूस की, मगर उमर ने इसका हाथ पकड़ा और कहा, जी ये वही है जरमीना, इज्जत से कमाने वाली और अपने घर की वाहद फर्द कफालत करने वाली। जरमीना के लिए ये जुमला बहुत खास था। इसमें एक खास जज्बा था जो इसने उमर के दिल में अपने लिए महसूस किया। वो लम्हा एक नया आवाज था। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। इनकी मोहब्बत को जल्द ही सख्त आजमाइशों का सामना करना पड़ा, लेकिन साथ ही जिंदगी के तल्ख हकाइक ने भी इनके ताल्लुक में दरारें डालना शुरू कर दी। जरमीना की गुर्बत, इसके खानदान की मुश्किलात और उम्र के माशरती दायरे ने इनके दरमियान फासले पैदा करना शुरू कर दिए। जरमीना की छोटी बहनों की तालीम के लिए पैसे की जरूरत बढ़ रही थी और उमर की फैमिली को इस रिश्ते से एतराज था। एक दिन जब उमर ने अपने वालिद से बात की तो इन्हें सख्त इनकार करने का सामना करना पड़ा। तुम एक गरीब लड़की के साथ कैसे हो? तुम्हारा मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा, इनके वालिद ने सख्त लहजे में कहा। ये सुनकर उमर का दिल टूट गया, मगर इसने जरमीना को कभी मायूस नहीं किया। वो हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार था, लेकिन जरमीना के दिल में शक और खौफ ने जगह बना ली थी, क्योंकि इसकी माँ ने जरमीना को कई बार कहा था कि ये रईसज़ादे सिर्फ अच्छा वक्त गुजारते हैं, ये तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, हमने दुनिया देखी है। ये सब बातें सोचकर वो उमर से दूर रहने लगे। इसकी फोन कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया और अपनी जिंदगी की मुश्किलात में खो गई। उमर ने इसे ढूंढना शुरू किया, इसे कायल करने की हर कोशिश की, मगर जरमीना के दिल की दीवारें मजबूत हो चुकी थी। मगर दिन रात उमर के साथ गुजरे हुए हर लम्हे को याद करती थी और पल पल तड़पती थी। एक दिन जब वो मॉल के बाहर खड़ा होकर एक दुख भरी गजल सुन रहा था गाड़ी में बैठे हुए, तो अपनी आंखें बंद करके जरमीना को याद कर रहा था कि अचानक जरमीना इसके सामने आ गई। इसकी आंखों में पछतावा और दर्द था। उमर, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए नहीं बन सकती। उमर ने इसका हाथ पकड़कर कहा, जरमीना, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शाम के सुनहरे रंगों ने आसमान को लपेट रखा था जब उमर ने जरमीना को शहर के एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में बुलाया और चंद अपने करीबी दोस्तों को गवाह बनाकर इससे शादी कर ली। ये जगह उमर की दुनिया की अक्कासी से चमकती हुई रोशनियों, महंगे गुलाबों और पुरसुकून माहौल में एक ऐसी दुनिया जहाँ जरमीना कभी नहीं पहुंची थी। जरमीना के दिल में अजाब और खौफ का मिला जुला एहसास था। वो जानती थी कि ये सब उमर की मोहब्बत का हिस्सा है, मगर इसकी सादगी और गुर्बत की हकीकतें इसे हर लम्हा परेशान कर रही थीं। उमर ने इसके हाथ पकड़े और कहा, जरमीना, आज की शाम में तुम्हें अपने दिल की सब बातें सुनाना चाहता हूँ। तुमने मेरे दिल में जो जगह बनाई है वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। जरमीना की आंखों में आंसू आ गए। वो जिंदगी की तलखियों के बावजूद आज पहली बार किसी से इतना खास महसूस करवाया था। वो उमर के करीब आ गए और इसकी गर्दन पर अपना सर रख दिया। उमर ने आहिस्ता आहिस्ता से इसके बाल सहलाए और जरमीना को ढेर सारा प्यार दिया। ये पहली बार था जब दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता कायम हो रहा था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें मोहब्बत के साथ जिस्मानी गुर्बत भी शामिल थी। रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे के लम्स में खो गए। जरमीना ने पहली बार इतनी गहरी मोहब्बत महसूस की जो सिर्फ अल्फाज से बयान नहीं की जा सकती थी। इनके दरमियान नर्म मोहब्बत, लम्स की कशिश और दिल की धड़कन की हम आहंगी ने मोहब्बत को एक नई जहत दी।
सरमीना की दुनिया बदल गई थी। उमर ने इसे खुद से करीब लाकर वो सब कुछ दिखाया जो इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अगली सुबह उमर ने इसे हंसते हुए खुश होकर इसके घर पर छोड़ा, मगर किस्मत के फैसले सख्त थे। ये सरमीना की उमर से आखिरी मुलाकात थी। इस दिन के बाद 2 माह गुजर गए, मगर उमर का कुछ पता नहीं। इसने सरमीना का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। फिर एक दिन दरवाजा नॉक हुआ और सरमीना ने दरवाजा खोला। एक पोस्टमैन ने इसे एक कागजात का लिफाफा पकड़ाया। जब खोल कर देखा तो इसके होश उड़ गए। वो तलाकनामा था। सरमीना ने बेहोश हो गई। इसके माँ ने होश में आने के बाद इससे कहा, हमारी बातें सच साबित हुई। हम अब मोहल्ले में क्या मुंह दिखाएंगे? तुमने हमें किसी काम का नहीं छोड़ा, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अब हमारी बात का यकीन कौन करेगा कि तुम्हारी शादी हुई है? सब यही कहेंगे कि बाहर पता नहीं नौकरी के नाम पर क्या गुल खिलाती रही है। अब भुगतो अपने इस गुनाह को जो रात के अंधेरे में तुमने किया। सरमीना जोर जोर से चीखी और कहा कि मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, मैंने मोहब्बत की है और मैंने निकाह किया है। सरमीना उमर के बंगले पर गई। वहां पर मौजूद गार्ड ने इसे बताया कि वो 2 माह पहले ही लंदन जा चुके हैं और वापसी का भी कुछ पता नहीं और हमारा भी इनसे कोई राब्ता नहीं। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा सरमीना ने खुद को संभाला। सरमीना ने उमर की याद में अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। अपनी छोटी बहनों की तालीम मुकम्मल करवाई और उमर के साथ जो ख्वाब देखे थे इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश की। सरमीना मुख्तलिफ होटलों में एज अ शेफ अपनी नौकरी के लिए अप्लाई किया। एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में इसकी नौकरी हो गई, जहां पर इसे सिर्फ जज करने और एज अ गाइडेंस बाकी शेफ स्टाफ के लिए हायर किया गया और मैनेजमेंट का काम संभाला और इसकी सैलरी भी काफी अच्छी थी। इनके हालात काफी बदल चुके थे। तकरीबन 2 साल के बाद रोड पर एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ बॉल उठाकर एक गाड़ी के सामने आया। इतनी में एक मजदूर इंसान ने अपनी व्हील चेयर घुमाई और बच्चे को खींचकर दूर फेंक दिया और खुद गाड़ी से टकराकर नीचे गिर गया। इसे सर पर और बाजू पर काफी चोटें आई। सरमीना भागती हुई आई और चीख कर इस बच्चे को गले लगाया और इस मजदूर शख्स को उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया। अपने दुपट्टे से इसके माथे का खून साफ किया। जब देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उमर था। उमर को देखकर इसके कदम लड़खड़ाए और दिल तेजी से धड़कने लगा और आंखों में आंसू भर आए और बोली, तुम यहाँ कैसे? उमर ने शर्मिंदगी से अपना मुंह नीचे किया और फिर नजर उठाकर बच्चे की तरफ देखा और बोला, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। सरमीना को गुस्सा आया और दिल में हजारों शिकवे भर कर बोली, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो मुझे हमेशा के लिए तन्हा छोड़ दिया और मुझे छोड़ने की वजह से ही तुम्हें कुदरत ने ये सजा दी है कि तुम आज इस हाल में हो। तुमने एक मासूम का दिल तोड़ा था, इसके अरमानों का खून किया। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा उमर। फिर अपने बच्चे को पकड़ा और भाग गई। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वो अपने बच्चे की शॉपिंग कर रही थी कि अचानक किसी शख्स ने इसे पीछे से बुलाया। वो उमर का ड्राइवर था। ड्राइवर ने कहा, अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे सिर्फ 5 मिनट दे सकती हैं, बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। सरमीना ने कहा, जी बोलिए, आइए बैठते हैं। फिर उमर के ड्राइवर ने इसे तफसीलन बताया कि जिस रात आपकी शादी हुई थी मैं भी वहीं मौजूद था। सरमीना बोली, मैं जानती हूँ इस बात को, आगे बढ़ो। शादी के अगले दिन उमर के वालिद के साथ बहुत बहस हुई तो उमर ने कहा कि मैं ये घर छोड़ दूंगा और आपकी हर चीज़ आपको मुबारक हो, क्योंकि इसके बाप ने कहा था कि सरमीना ने तुमसे सिर्फ पैसे के लिए शादी की और उमर ये बात साबित करना चाहता था कि वो पैसे के लिए नहीं, मेरी मोहब्बत के लिए मेरे निकाह में आई है। और ये बात साबित करने के लिए वो गुस्से से बाहर निकले और गाड़ी तेज रफ्तारी से चलाई और इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में इनकी एक टांग माजूर हो गई। वो ये बात आपसे छुपाना चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आपकी पूरी जिंदगी इनकी वजह से बर्बाद हो। आप जवान थी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती थी, इसलिए इन्होंने ये बात छुपाई और वकील को कहा तुम तलाक के कागजात तैयार करवा के भेज दो और खुद हमेशा के लिए लंदन चले गए। लेकिन इस दौरान आपकी नौकरी भी करवा के गए ताकि आपको इनके बाद कोई मुहताजी ना हो। और अब ये 2 साल के बाद वापस लौटे हैं। ये सुनकर जरमीना की आंखों में आंसू भर आए कि मैंने उमर को कितना गलत समझा और क्या कुछ सुना दिया। और इसकी चाहत मुझसे कहीं ज्यादा थी, जिसमें ना किसी किस्म का शक था और ना कोई धोखा।
लेकिन किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। सरमीना ने कहा, मुझे फौरन इसके पास ले जाओ। इसने अपने बच्चे को उठाया और ड्राइवर के साथ इसके घर पर गई। उमर चुपचाप बैठा लॉन में मुरझाए हुए फूलों की तरफ उदासी से देख रहा था कि सरमीना ने आते ही उमर का गिरबान पकड़ा और इस पर चिल्लाने लगी, तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा इस हादसे का? क्या मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियों में शरीक थी और दुख आया तो मुझे अजनबी कर दिया? क्यों? क्या मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था तुम्हें? वो बहुत रोई। उमर खामोश नजरों से सर झुकाए सुन रहा था मगर कुछ न बोला। उमर ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, ये बच्चा बहुत प्यारा है। सरमीना रोते रोते मुस्कुराई और बोली, प्यारा क्यों नहीं होगा जहाने उमर अपने बाप पर जो गया है। उमर ने हैरानगी से इसकी तरफ नजर उठाकर देखा और कहा, क्या बोला तुमने? वो मुस्कुराई और कहा, वही जो तुमने सुना, ये तुम्हारा बेटा है बेवकूफ। जब तुमने मुझे तलाक दी तो इस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, तो इस्लामी कानून के मुताबिक तलाक कैसे हो सकती है? उमर मुस्कुराया और कहा, इसका मतलब ये है कि हमारी तलाक नहीं हुई और ये मेरा बेटा है। सरमीना ने हाँ में सर हिलाया। उमर ने अपनी व्हील चेयर को आगे किया और बच्चे को पकड़कर गले से लगाया और जोर जोर से प्यार करने लगा और चूमने लगा। फिर आंखों में आंसू भरकर उमर ने सरमीना से कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे मुस्तकबिल की सबसे बड़ी रुकावट बन जाऊं। तुम्हारी आंखों में बहुत बड़े ख्वाब थे और मैं इसे पूरा होते हुए देखना चाहता था। फिर वो दोनों मुस्कुराई और उमर ने अपने दाएं जानिब बच्चे का हाथ पकड़ा और बाएं जानिब अपनी सरमीना का हाथ पकड़ा और घर के अंदर चले गए। इसी तरह से इनकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हुई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्क्रिप्ट राइटर अनम जवाद, वॉइस ओवर अनम जवाद।